Hello, children. Good morning, everyone. As I hope you all are okay at your home. In this session, we are going to study chapter number 2 and its half part we have already done. In the previous part, we have studied that there is a girl named Mridu and her grandmother visited Rukumani's auntie's house, where her two cousins Ravi and Meena met her, and they were very happy and they were very pleased to see her. That's why they have shown Mridu their newly domesticated kitten and her house, where they have kept the small cat under the bush. They were telling that its name is very royal, and because of that, let me show you that thing also so that you can understand where I am talking about. So Ravi told her the name of the cute little kitten is Mahindran, and he has also told her that why he has kept her name Mahindran. He has told her about the history behind the name of Mahindran, about the Mahabalipuram royal family of Pallava dynasty. Okay, and then Mridu was very impressed with the name, the nomenclature. Nomenclature, it means कि नाम रखना, नामकरण. So she was very happy that because she found the impressive and different name for the cat kept by Ravi. And then Ravi and all the children told her that how they struggled to get the milk from the kitchen to the little kitten. Okay, and then she has also told her that their sister Lalli, she is learning music from the music teacher. She was playing violin, but she was not very good at playing violin. So they went on to see what Lali is doing. Okay, let's move to the next part. Mridu crept up to the window. It means Mridu, she was very excited to see Lali, that how she is playing the violin, because she was listening the beautiful music played by the music teacher, but Lalli was not as good as her teacher. That's why she was not able to match the tone, the music tone, the voice with her teacher, and she was derailing every time with the tone of the music. Now Lalli was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring. Bowstring means जो violin के साथ बजाने के लिए यूज किया था, सो bowstring बोलते हैं. Her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. It means the music master was sitting beside the wall, where the children were peeping in. Peeping in का मतलब जहाँ से वो लोग झांक कर अंदर की ओर देख रहे थे, उनकी तरफ पीठ करके म्यूजिक वाले टीचर बैठे हुए थे. और मृदु जो थी, उसने
खिड़की से आगे झांक कर देखा तो लल्ली क्या कर रही थी? She was sitting the little distance away from the music teacher and she was awkwardly looking her violin. वो अपने वायलिन को बड़े ही अजीब तरीके से देख रही थी और वो बार बार कॉन्सेंट्रेट होने का प्रयास कर रही थी. बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर का मतलब वो बहुत ही क्या थे? बिल्कुल हड्डी थे. शरीर से कैसे थे? बिल्कुल हड्डी थे. एंड देन in front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with the fringe of old black hair falling around his ears and old-fashioned tuft. टफ्ट का यहाँ क्या मतलब है? जो गले में गमछा डाला जाता है उसे बोलते हैं हम टफ्ट. तो उनकी अपीयरेंस कैसी थी? उनके ज्यादातर बाल उड़ चुके थे. उनके ज्यादातर बाल उड़ चुके थे और उनके कुछ ही बाल बच गए थे जिससे लग रहा था, और उन्होंने एक बहुत ही पुराने डिजाइन का ओल्ड फैशन टफ्ट पहन रखा था. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. तो उन्होंने हाथ में एक हीरे की अंगूठी और गले में एक सोने की चेन पहन रखी थी. A large foot stuck out from the beneath his gold bordered waisty edge. Waisty means dhoti. And he was beating time on the floor with the scrawny big toe. It means she was making when the music teacher was playing violin and teaching to Lalli, वो क्या कर रहे थे? वो बार बार अपने टूस को टैप कर रहे थे ताकि क्या कर रहे थे? वो सुर को लगाने का प्रयास कर रहे थे. ऐसा होता है ना कि जब हम रिदम में चलते हैं तो हम उस रिदम के साथ अपने बॉडी के मूवमेंट्स भी करते हैं. तो ही वॉज बैलेंसिंग द रिदम ऑफ द म्यूजिक played by the violin. Then he played a few notes. Lalli stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. Lalli, she was trying hard to get in the rhythm with her teacher, but she was not very good at that. That's why she was very unhappy. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the visible tracks of the melody. कितना डिफरेंस है दोनों में कि जो म्यूजिक मास्टर के नोट्स थे, नोट्स तो मतलब यहाँ पर म्यूजिक नोट्स है, मतलब कि जो उनके सुर जो ताल थे वो क्या हो रहे थे? बिल्कुल फ्लोट कर रहे थे. मतलब कि कैसे हो रहे थे? बह रहे थे और सेटल परफेक्टली, और बिल्कुल क्या हो रहे थे? बिल्कुल सटीक थे. इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी, मतलब क्या थे? वो सुर को बहुत ही अच्छे तरीके से पिरो रहे थे. मतलब उनके जो सुर थे, उनकी जो वॉइस थी, जो वो ताल बजा रहे थे, उनकी जो धुन थी, मतलब मेलोडी का मतलब होता है धुन, वो उनकी बजाए हुए उसका वो क्या था? बहुत ही अच्छी धुन में बजा रहे थे. एंड इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन द रेल्स एंड विजिंग अलोंग, एज रवि सेड. जैसा रवि ने कहा था कि जो म्यूजिक के टीचर हैं वो कैसा बोलते हैं? वो ऐसा बजाते हैं, मतलब इतना अच्छा वायलिन बजाते हैं कि जैसे कि ट्रेन की पटरियों को ट्रेन के चक्के जोर से पकड़ कर रखते हैं और पटरी से उतरने नहीं देते. सो मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज बेरिंग्ड हैंड मूविंग effortlessly up the violin stem making lovely music. अब मृदु ने उनके हाथ को देखा. बिरिंग्ड हैंड का मतलब जिसके हाथ में रिंग हो, वो उस हाथ को देख रही थी जो बड़े ही आसानी से, एफर्टलेसली मतलब बड़े ही आसानी से वायलिन की स्टेम को क्या कर रहे थे? बिना किसी ज्यादा जोर के, मतलब बड़ी ही आसानी से उसे बजा ले रहे थे और बहुत ही अच्छा म्यूजिक सुना रहे थे. स्क्वाक, देयर वॉज अ लल्ली डिरेलिंग अगेन, मतलब लल्ली एक बार फिर क्या हो गई? फिर से वो रुक गई और समझ ही नहीं पाई. अम्मा का केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा, ओह, उसने बोला कि अम्मा अम्मा, 2 बार अम्मा की आवाज आई कहने की. रवि सेंड दैट बेगर अवे. अब अम्मा अम्मा की आवाज आई और
अम्मा ने जो उसकी मदर ने जोर से चिल्ला करके बोला, रवि उस भिखारी को वहां से भगाओ। फ्रॉम द बैक वरंडा वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी, जहां पे वो तापी के साथ बैठी हुई थी, वो वहां से आवाज लगाते हुए रवि से कहती हैं कि जाओ उस भिखारी को घर से भगा दो। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. कहने का मतलब है कि it was very frequent that the same beggar was coming to beg. He was asking for the food. सो पट्टी एक्सप्लेन टू तापी, तो मतलब कि जो रवि की दादी थी वो तापी को समझा रही थी। तापी मतलब मृदु की दादी को समझा रही थी कि ये भिखारी रेगुलर आ जाता है हमारे घर में भीख मांगने के लिए, और ये इसको दूसरों का घर भी नहीं मिलता। अब मुझे लगता है कि इसे दूसरों के घर जाना चाहिए भीख मांगने के लिए, हमेशा हमारे घर पर नहीं आना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, दोनों रवि के पीछे गई। The beggar was already in the garden making himself quite at home, and he had spread his upper cloth under the neem tree and he was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he awaited for the arms to appear. Go away, and said Ravi sternly, my putty said it's time you to found another house to beg from. So now they found, it means all the children found that the beggar was about to sit to take a nap until he will get the alms. Alms, it means bheek. Until he will get the alms from the home, because he was waiting for the alms and he thought that if he will wait he will get the alms so that they can carry him away, so that they can kick him out and he will get the money from them or whatever it will be given to him. Okay, so रवि ने बड़े ही मजबूती से, टर्नली मतलब होता है बड़ी ही मजबूती से उसने कहा कि मेरी दादी कहती है कि अब आपका समय आ गया है कि आप किसी दूसरे घर की ओर जाओ। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. और जो भिखारी था उसने अपनी आंखें खोली और बड़ी सी आंखें खोली और वो क्या किया, दोनों को घूरने लगा, दोनों ही बच्चों को घूरने लगा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, उसने ये कहा इस घर की औरतें, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग। चोक्ड विथ फीलिंग मतलब उसकी गले में, उसका गला रुध गया था, जैसे कि ही वॉज अबाउट टू क्राई। द लेडीज ऑफ दिस हाउस आर वेरी काइंड सोल्स, यहाँ की जो महिलाएं हैं इस घर की वो बड़ी ही क्या हैं, बड़ी ही दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टूगेदर ऑन देयर जनरोसिटी फॉर अ होल वीक, आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। उसने बताया कि पूरे हफ्ते में उनसे भीख मांगता रहा और वो दोनों ही क्या हैं, बड़ी ही दयालु हैं। मतलब महिलाएं इस घर की बहुत ही दयालु हैं। मैंने अपने पूरा जीवन और अपनी बॉडी जो है वो उनको समर्पित कर दिया है कि अगर वो लोग दया करेंगी तभी मेरे ऊपर दया होगी। मतलब वो लोग इतनी दयालु थी कि उनको पता था कि ये रोज आता है तो वो लोग रोज देती थी, है ना, लेकिन अब उस दिन लग रहा था उनको कि अब ये ज्यादा हो रहा है, तो दे वर थिंकिंग दैट इट इज नाउ इनफ सो दैट ही कैन फाइंड द न्यू वे और न्यू हाउस टू बैग समवेयर एल्स। सो नाउ ही वुड टर्न, अब उसको नहीं लगता था कि उसको विश्वास, वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे कहीं और भेजेंगे, मुझे लगता है वो मुझे फिर भी देंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा, ओ सैड हिज वेल माइट बी ट्रू बट इट certainly was feeble. It began in a deep strong rumble somewhere in the withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with the bitter chewing. अब देखो वो बार बार अम्मा अम्मा चिल्ला रहा था, मतलब कि यहाँ के वो वहाँ के घर की महिलाओं को बुला रहा था माँ माँ कह करके, और ऐसा लगता था कि उसकी जो वेलिंग है, मतलब उसकी जो चिल्लाना है, जो उसका सैड क्राई है, वो कहाँ से निकल के आ रहा है कि वो उसके अंदर, मतलब उसके हृदय में कहीं उसका जो डीप डाउन दर्द है वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली। विदर्ड का मतलब होता है टूटी फूटी बैली, ये विदर्ड का मतलब होता है टूटा फटा, एंड बैली मतलब कि उसके पेट की भूख की आवाज थी जो उसके मुंह से निकल कर आ रही थी। बूमिंग आउट हिज माउथ मतलब कि जो उसके पेट के अंदर की जो आग थी वो उसके माउथ से निकलकर उसकी बातों में समझ में झलक के आ रही थी,
जब वो अम्मा अम्मा चिल्ला रहा था, मतलब ही वॉज वेरी वेरी हंग्री एंड ही वॉज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द लेडीज ऑफ the house, and he cannot believe that the lady of the house will turn him away. So now उसके पास क्या थे, बहुत ही थोड़े से दांत बच गए थे, जो कि क्या हो गए थे, ब्राउन हो गए थे. किसकी वजह से? सुपारी चबाने की वजह से. बीटल चुइंग का मतलब सुपारी चबाने की वजह से. रवि tell him there is nothing left in the kitchen called Rukumani. Now the mother of Ravi said that Ravi tell him, Ravi उसे बता दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा, and he is not to come again. Tell him that, उसे बताओ कि वो यहाँ ना आए दोबारा. She founded fed up. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बोलकर थक गई हैं. Ravi did not have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them to all the hear. And there under the neem tree, the beggar sat up and shied. I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under the tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. तो उसने क्या बोला कि रवि ने उसकी मदर की बात को दोबारा नहीं दोहराया, बिकॉज ऑलरेडी एवरीबडी हैज लिसन्ड दैट अप. एंड नाउ द बेगर आस्क्ड रवि दैट काइंडली लेट हिम sit under the tree so that he can take a nap, and when he will feel good and the weather will be a little when the weather will be okay to go away, he will go away. And he was also telling, because the sun is very hot, the sun was very hot because it was the time of the afternoon, and the tar melted on the road. मतलब कि जो रोड पे जो टार होता है, मतलब कि जो रोड पे टार आप लोग जानते होगी क्या होता है, जो रोड पे बिछाया जाता है रोड को जोड़ने के लिए, वो क्या हो गया है, गल गया है. इतनी ज्यादा धूप है कि उसकी वजह से रोड का टार क्या हो गया है, गल गया है. और माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है जख्मी हो जाना. तो उसके मेरे जो पैर हैं वो ऑलरेडी क्या हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं. ही स्ट्रेच्ड आउट his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. उसने अपने पैरों को फैला करके रवि को डेमोन्स्ट्रेट किया कि देखो उसके पैरों में कितने सारे छाले पड़ गए हैं. ओके, यहाँ ब्लिस्टर्स का मतलब छालों से है. ब्लिस्टर्स का यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग किया जाता है. जैसे कि मुंह में होने वाले छालों के लिए भी हम ब्लिस्टर्स का यूज करते हैं, पैरों में होने वाले छालों के लिए भी हम ब्लिस्टर्स का यूज करते हैं. कई बार हमारे हाथ में किसी तरीके का बर्न हो जाता है, मतलब कभी कभी हाथ जल जाता है, तो उससे एक बॉयल बन जाता है जिसमें वाटर भरा होता है, वाटर नहीं, एक तरीके का पस भरा होता है, उसके लिए भी हम ब्लिस्टर्स का यूज करते हैं. So I suppose he doesn't have the money to buy chappals. Mridu whispered to Meena and Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? मुझे लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं. तो उस मृदु ने बड़े ही काना फूस, विस्पर्ड का मतलब होता है काना फूसी करते हुए मीना और रवि से कहा, क्या तुम्हारे पास एक ओल्ड पेयर है, मतलब कोई पुराने चप्पल का जोड़ा है? I don't know, said Ravi. Mine are too small to his feet, or I'd given them to him. And his feet were larger than Mridu's and Meena's. मुझे नहीं पता, मेरे पैर के तो साइज बहुत ही छोटा है, नहीं तो मैं अपना चप्पल उसे दे देता. और उसके फीट मृदु और मीना दोनों से ही क्या थे, बहुत बड़े थे. The beggar was shaking out his upper clothes and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. जो बैगर था वो बिल्कुल कांप रहा था. Out his upper cloth and tightening his धोती, और वो अपनी धोती को टाइट कर रहा था. And his raised his eyes, उसने अपनी आंखों को ऊपर की ओर देखा, रवि और मीना की ओर देखा क्योंकि वो ऑलरेडी बैठा हुआ था, और उसने फिर रोड की ओर देखा जो कि क्या हो रही थी, बिल्कुल इट वॉज बर्निंग. The road was completely burning because it was the time of afternoon when the sun is on its high pitch. So it was very scorching sun at that. So it was not easy to move away from there for a person who is not having any slippers on his feet. Then gleaming in the afternoon heat,
He needs something to on his feet, Meena said again, her big eyes filling. It's not fair. उसको पैरों में कुछ ना कुछ चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है. Shh, said Ravi. I am thinking about it. Blubbering. It's not fair, it's not fair. Isn't going to help? In 2 minutes he'll be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. Then Ravi ने कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों, मुझे सोचने दो, थोड़ा देर मुझे सोचने दो. अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है. अरे मुझे सोचने तो दो कि मैं इसकी हेल्प कैसे कर जाता हूँ. तुम्हारे इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर बोलने से उसकी हेल्प नहीं होगी. रुको, तो मुझे 2 मिनट का समय, 2 मिनट के भीतर में वो अपने पैरों को क्या कर लेगा, फ्राई कर लेगा. मतलब उसके पैर क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे. एंड ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स. उसे किसकी जरूरत है, एक पेयर चप्पल की जरूरत है. अब हम कहाँ से लाएं वो चप्पल? चलो क्यों ना घर में ढूंढते हैं. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? जब उस कमरे के अंदर आ रही थी, and when she was setting off her chappals, she saw the chappals of the music teacher, and it was kept outside and it was black. Okay, so when she saw the pair of the chappals, she was asking to Ravi that whose chappals are those. Ravi turned and glanced at the shabby look but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. Ravi ने मुड़कर देखा उस शैबी लुकिंग मतलब उन गंदे मतलब धूल से लिपटे हुए उन चप्पलों को देखा. बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स क्या हो चुके थे, बहुत ज्यादा पुराने चप्पल हो चुके थे. ही बीम्ड एंड नॉडेड, जैसे कि उसके दिमाग में एकदम जोरदार आइडिया आ गया हो और उसने अपने सर को हिलाया. उसने कहा, पक्का ये उसके साइज के हैं. उसने उन्हें उठाया और चल दिया. मृदु और मीना दोनों ने उसे पीछा किया. Here, said Ravi to beggar, dropping the slippers in front of the old man. With these and don't come back. ये लो और यहाँ पर दोबारा वापस मत आना. The beggar stared at the slippers, hurried, flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. अब भिखारी ने क्या किया, उसने ध्यान से स्लीपर्स को देखा. फटाक से उसने अपना तौलिया निकाला और उसने अपने शोल्डर पे डाला और जैसे ही उसने अपने फीट उसके अंदर डाले और वहां से चल दिया और मन ही मन उसने बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद दिया. In a minute he has vanished around the corner of the street. 1 मिनट के भीतर में वो वहां से गायब हो गया. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. इतने में म्यूजिक मास्टर बाहर निकले और उन्होंने बड़े ही अजीब नजरों से तीनों बच्चों की ओर देखा जो लोग ट्री के नीचे बैठ के खेल रहे थे. एंड प्लेइंग मार्बल्स, वो क्या कर रहे थे, मार्बल के साथ खेल रहे थे. देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरंडा वेयर ही हैड पुट देम. अब उसने वरंडे में जहां अपने चप्पलों को सेट ऑफ किया था वो ही स्टार्टेड सर्चिंग their slippers. Lully, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. अब उसने लल्ली को बुलाया और उससे पूछा कि Have you seen my slippers? I have kept them here only. Ravi, Mridu, Meena silently watched Lully and the music teacher search every corner of the veranda. So now Lully and the music teacher both started searching the chappal. The chappals were already gone away. He scurried around, looking over the railing, crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. And he went on saying, they cost a lot, a whole month's fee, do you know?
Now, the teacher was telling that how they are costly. They were costly. The chappals were those chappals were very costly to him because they had the cost of the fees of 1 month. मतलब वो इतने महंगे थे और उसे खरीदने के लिए वो माउंट रोड तक गए थे. उस जमाने में बच्चों चप्पल लेने के लिए लोग बहुत दूर दूर दुकानों में जाया करते थे. आज के ज़माने में तो ऑनलाइन आ जाता है, लेकिन उस ज़माने में नहीं होता था ऐसा. तो म्यूजिक टीचर बताते थे कि कितना कठिन है उन चप्पलों को खरीदना और वो कितने महंगे थे. उन्होंने ये भी बताया कि पूरे 1 महीने की फीस चाहिए चप्पलों को दोबारा खरीदने के लिए. Soon Lalli went in to tell her mother. Rukumani appeared, looked harassed, with Patti following her. उसके बाद लल्ली अपने माँ को ये बात बताने गई और रुक्कुमनी वापस आई और वो जैसे लग रहा था कि उन्हें कोई गलती. शी वॉज कम्प्लीटली फिल्ड विद गिल्ट एंड विद पट्टी फॉलोइंग हर. पट्टी भी आ गई. Where could they be? Is it really quite upsetting to think someone might have stolen them? So many vendors come to the door, worried Patti. पट्टी ने सोचा कि आखिर गए कहाँ होंगे. ये कितनी अजीब और कितनी दुखदायक बात है कि किसी ने उनके चप्पल चुरा लिए. एंड क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्या आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स आते हैं. वेंडर्स मतलब सामान बेचने वाले आते हैं. रुक्कुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in the place of her usually soft, pleasant mouth. अब रुक्कुमनी को थोड़ा सा शक हुआ उन बच्चों पर. रुक्कुमनी ने रवि, मृदु और मीना की ओर ध्यान से देखा, जो लोग अभी बिल्कुल आसानी से विदाउट एनी प्रॉब्लम आराम से खेल रहे थे. एंड दे वर क्यूरियसली क्वाइट. वो बहुत ही शांत थे और अजीब शांत थे. और उन्होंने बड़े धीमे से पूछा कि तुम में से किसी ने वरंडे में झांक कर देखा था क्या? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. उनको शक हो गया, इसलिए उसने अपनी दोनों भौहों के नीचे एक वी बना लिया. मतलब वो उन्होंने अपनी भौहें तान ली. एंड अनदर स्ट्रेट. एक भौं को उन्होंने तान लिया, दूसरी को उन्होंने स्ट्रेट कर लिया. टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट. जबकि उनकी आंखें क्या रहती थी, एक फिक्स जगह पर बनी रहती थी, लेकिन अभी क्योंकि उनका चेहरा क्रोधित हो गया था, इसलिए वो अजीब सी नजरों से उन्होंने उसे देखा. थॉट मृदु विद अ शिवर. रुक्कुमनी वॉज एंग्री. अब रुक्कुमनी क्या हो गई थी, बहुत ही गुस्से में थी. उनको लगा कि मृदु क्या कर रही थी, कांप रही थी. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with the sores on his feet. She tried to tell herself. Taking a deep breath, she cried, Rukkumani, there was a beggar here, poor thing, he had such boils on his feet. Now, because Mridu was very kind-hearted and she was really innocent, बहुत ही innocent थी, उसके पास वो ज़्यादा देर तक lie को छुपा नहीं पाई. She couldn't hide that lie that she was lying. उसने सीधे बता दिया कि रुक्कुमनी जो था, यहाँ पर एक बेगर आया हुआ था और बहुत बेचारा, उसके पैरों पर बहुत सारे छाले निकल गए थे. तो रुक्कुमनी ने कहा, So, said रुक्कुमनी grimly, turning to Ravi. अब रवि की ओर मुड़कर देखा. You gave the music master's chappal to the old beggar who turns up here. तो तुमने क्या किया, म्यूजिक मास्टर के चप्पल ही उठा कर दे दिए उस पुराने भिखारी को जो यहाँ पर रोज आता है. चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पट्टी. अब पट्टी भी गुस्सा आ गया. उन्होंने कहा, आजकल के बच्चे. अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्मा हु गेव अवे about Karna, who gave away everything he had, even his gold earrings. He was so kind and generous. अब बच्चों को तो अपना पॉइंट मिल गया. उन्होंने कहा कि अम्मा, आप ही ने तो हमें कर्ण की कहानी सुनाई थी, जिसने अपना सब कुछ क्या कर दिया था, दान कर दिया था, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी. मम्मी सोचो वो कितना दयालु और जनरस था. Silly, snapped Rukkumani. Karna didn't give away other people's thing. He only gave away his own.
क्या बेवकूफ़ी भरी बात करते हो। कर्ण ने अपने चप्पल अपना सामान वो दूसरों का सामान थोड़ी देता था, वो तो अपना सामान दिया करता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बिगर्स फीट। पर मम्मी मेरे चप्पल तो उनके में फिट ही नहीं हो रहे थे। रवि रस्ड ब्रैशली ऑन एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। और अगर वो फिट हो जाते तो क्या आपको ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगती कि मैं अगर उसको अपने चप्पल दे देता। रवि said Rukumani, very angry now. Go inside this minute. अंदर जाओ. She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music teacher's eyes lit up. He put them on and trying not to look too happy. Well, I suppose these will have to do. These days children have no respect for elder. What to do? Now, again the blabbering and babbling started between the two ladies. उसने कहा कि अब वो धीमे से अंदर चली गई और वो गोपू मामा के बहुत ही नए चप्पलों को उठाकर उन्होंने म्यूजिक मास्टर को दे दिया. म्यूजिक मास्टर got very happy, but he was pretending that he is not happy by getting those chappals, because he was knowing that he was getting the new chappals, even that he was having old chappals earlier, and now he is getting the new chappals, even that he was pretending that he is not happy. और उन्होंने बताया कि अब मेरा लड़का बहुत ही नोटी है, पर कोई नहीं, आप इन चप्पल को पहन लीजिए. मुझे लगता है कि आपको इन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए. आजकल के बच्चों को बड़े लोगों की कोई भी उनके मन में उन लोगों के प्रति कोई भी सम्मान नहीं है. क्या ही कर सकते हैं ना. अ हनुमान इनकैर्नेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नोटी फेलो. हनुमान इनकारनेट मतलब कि अब कोई हनुमान का अवतार और भगवान राम कैन हैव सच अ नॉटी फेलो. आपको क्या लगता है कि ये जो है ये सब हनुमान जी के या इसके वो हैं क्या, मतलब अवतार थोड़े ही हैं. अब ये हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो शैतानी तो करेंगे ही. रुक्मणी's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. ऐसा नहीं लग रहा था रुक्मणी की माँ को देखकर कि वो अपने बेटे को बंदर बुलाना चाहती हैं, इवन अ होली मंकी. इसलिए उन्होंने हनुमान जी का नाम लेकर एक होली मंकी का नाम, मतलब भगवान जो है वो ही सीम्स लाइक अ मंकी बिकॉज ही वाज हैविंग दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. सो बिकॉज शी वाज नॉट गोइंग टू call her child as a monkey, that's why she was taking the name of Hanuman, God Hanuman. Then she stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. अब वो धीमे से खड़ी हुई और फ्रंट डोर के पास जाकर बोली. अब उनको लग रहा था कि वो किसी तरह वो वहां से चला जाए, मतलब म्यूजिक टीचर वहां से चला जाए. When he had cluttered off in his new chappals, he said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such thing? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. अब the music teacher has gone away. अब उसकी माँ ने कहा, मृदु तुम अंदर आओ और चलो कुछ खा लो. ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग. तुम लोग कैसे इतनी मतलब जेनरस और दयालु बातें सोच सकते हो. भगवान का शुक्र है कि गोपू मामा इन चप्पलों को काम करते वक्त नहीं पहनते. शी सडनली बिगैन टू लाफ, और वो जोर से हंसने लगी. शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना एंड शी सडनली बिगैन टू लाफ. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music teacher? अब जब वो किचन की ओर मृदु और मीना के साथ चली गई तो वो हंसने लगी. वो जोर जोर से क्या करने लगी, हंसने लगी. बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज. पर वो बताने लगी, गोपू मामा के बारे में बताने लगी कि गोपू मामा क्या करते थे, बड़ी ही जल्दी अपने शूज को, चप्पलों को फेंक दिया करते थे, कर दिया करते हैं मतलब.
एंड सॉक्स, अपने मोजे और जूतों को बड़े ही जल्दी फेंक दिया करते हैं। एंड गेट इनटू हिज चप्पल एज सुन एज ही कम्स होम, और फटाफट वो चप्पलों को पहन लेते हैं जैसे ही वो घर पे आते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, अब तुम्हारे मामा आज क्या कहेंगे जब मैं उन्हें आज ये बात बताऊंगी कि आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, कि मैं बताऊंगी कि आज मैंने उनके चप्पलों को म्यूजिक मास्टर को दे दिया। So it means that in the whole story we have seen that how the children are so generous towards the beggar, and they were learning that thing from their elders only. उनके एल्डर्स ही उन्हें ये चीजें सिखाते हैं। संस्कार ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चों। इसलिए आप लोग भी संस्कारी बने, सदाचारी बने, फुल ऑफ मॉरल वैल्यू बने। ओके, थैंक यू एवरीवन।